everyone, welcome to my YouTube channel Solution Book. In this video, I will explain some question from GATE 2021 Physics paper. Before reading our first question in this video, I want to tell you some basic. As you know that when two sides of a triangle are 3 or 4, unit may be any meter or centimeter, but unit should be same. Okay. By Pythagoras theorem, we can find that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, which is equal to 3 square plus 4 square, which is equal to 9 plus 16, which is equal to 25. That implies hypotenuse equals to 5. This is our Pythagoras triplet. Okay, and directions are north, south, west and east. Both these things will be used in this question. Okay, let us start our first question in this video. On a planar field, you traveled 3 units east. Let us start. This is our initial point. 3 units towards east means this side, right side. Okay, 3 units. Then from point O means this is our O point. Next, you traveled 4 units south. 4 units south means downward. To arrive at point P means this is our P point. Then you traveled from P in the northeast direction. This is our northeast direction. Okay, in between these two at 45 degree. From here, we will start moving in northeast direction. It means in this direction. Such that you arrive at point that is 6 units east of point O. This is point O. East is in this side, right side. We will reach at that point which is 6 meter from O. It means 3 meter up to here and further 3 meter up to here. Okay. This is 3 meter or any 3 unit. And this is 4 unit. Now we will apply this Pythagoras triplet here. We will get this side 5 units. And then next you traveled in the northwest direction. This is our north and this is west. In between these two there is northwest. This is northeast. So we will start moving northwest direction in this side. So that you arrive at a point Q that is 8 unit north of P. This point is P. North means upward direction. Upward direction में ये पॉइंट यहाँ से नहीं था, ये पॉइंट यहाँ से था. From here in this direction. Okay. यहाँ से P से हम 8 मीटर ऊपर की तरफ होगा वो पॉइंट जहाँ पे हम रीच करेंगे. 4 यूनिट ये वाला होगा और 4 यूनिट इसके ऊपर होगा. It means ये वाला पॉइंट है जहाँ पे हम रीच कर गए. This is our Q point. अब यहाँ पे भी हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है. This is 4 unit and this is 3 unit. It means this should be 5 unit. The distance of Q to O. This is O and this is Q. In the same unit. Same ही units रखनी है हमें. सिर्फ O
और क्यू के बीच का डिस्टेंस बताना है. दिस इज ऑल्सो अवर पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ वी जॉइन O to Q. Okay, this is 3, this is 4, this should be 5 unit. So our answer is 5 units. C option is the correct one. Now let us see our next question in this video. The author said musicians rehearse before their concert. इसका मतलब है कि म्यूजिशियन जो होते हैं वो रिहर्सल करते हैं अपने कॉन्सर्ट से पहले. रिहर्सल मीन्स प्रैक्टिस करते हैं. एक्टर्स रिहर्स देयर रोल बिफोर द ओपनिंग ऑफ न्यू प्ले. एक्टर्स न्यू प्ले स्टार्ट होने से पहले अपने रोल की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. ऑन द अदर हैंड आई फाइंड इट स्ट्रेंज दैट मेनी पब्लिक स्पीकर्स थिंक दैट दे कैन जस्ट वॉक ऑन टू द स्टेज एंड स्टार्ट स्पीकिंग. इट मीन्स दूसरी तरफ मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो स्पीच देते हैं पब्लिक में, वो स्टेज पे जाते हैं और बोलना स्टार्ट कर देते हैं. इन माई ओपिनियन इट इज नो लेस इम्पॉर्टेंट फॉर द पब्लिक स्पीकर टू रिहर्स देयर टॉक. मेरे ओपिनियन में, इट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, पब्लिक स्पीकर्स के लिए रिहर्सल करना या प्रैक्टिस करना कम महत्वपूर्ण नहीं होता होगा, कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता होगा. कम इम्पॉर्टेंट नहीं होता मतलब उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है. ये ओपिनियन है. ठीक है. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. वी विल चेक ईच ऑप्शन वन बाय वन. द ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर म्यूजिशियन, एक्टर्स एंड पब्लिक स्पीकर. इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग तीनों के लिए ही रिहर्सल करना इंपॉर्टेंट है. ये भी ठीक लग रहा है. लेट अस चेक अनदर ऑप्शंस. द ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सिंग इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक स्पीकर देन फॉर म्यूजिशियन एंड एक्टर्स. दिस इज रॉन्ग. इसमें बोला है कि लेस इंपॉर्टेंट मतलब कि पब्लिक स्पीकर के लिए कम इंपॉर्टेंट होता है रिहर्सल करना. ऐसा तो नहीं बोला ऑथर ने. दिस इज रॉन्ग. द ऑथर इज of opinion that rehearsing is more important only for musician than public speaker. ऐसा भी नहीं बोला कि म्यूजिशियन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिहर्सल करना और पब्लिक स्पीकर से, या पब्लिक स्पीकर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता. तो ऐसा तो नहीं बोला. ऑथर इज ऑफ ओपिनियन दैट रिहर्सल इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर देन म्यूजिशियन. म्यूजिशियन और एक्टर में तो कंपैरिजन किया ही नहीं गया कि किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है. ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सम फुटबॉल प्लेयर्स प्ले क्रिकेट. कुछ फुटबॉल प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं. जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम उनको ऐसे सर्कल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं, ट्राई करते हैं. जैसे कि सम फुटबॉल प्लेयर्स प्लेस क्रिकेट, कि कुछ फुटबॉल के प्लेयर ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं. इट मीन्स ये सर्कल फुटबॉल के प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट अस सी. और कुछ एक सर्कल हम क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए बनाएंगे. कुछ फुटबॉल के प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं. इट मीन्स दोनों में कुछ तो कॉमन होना चाहिए. तो ये हमारा क्रिकेट के प्लेयर्स आएंगे. ये वाले जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं. सो सम, नॉट ऑल. तो इसको ध्यान में रखना है. कंप्लीटली एफ हमारा सी के अंडर नहीं आना चाहिए. ऑल क्रिकेट प्लेयर्स प्ले हॉकी. क्रिकेट के सभी प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं. इट मीन्स सारा सी जो है एच के सर्कल में आना चाहिए इस टाइप से. इट मीन्स जो सारे क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो हॉकी खेल रहे हैं. अमंग द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्टेटमेंट दैट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द टू स्टेटमेंट 1 and 2 अबव. नो फुटबॉल प्लेयर प्लेज हॉकी. अब देखा जाए तो फुटबॉल के जो प्लेयर हैं ये हॉकी वाले, ये वाले जो फुटबॉल के प्लेयर हैं ये हॉकी वाले सर्कल में आ रहे हैं. इट मीन्स कि कुछ फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जो हॉकी खेलते हैं. तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग. सम फुटबॉल प्लेयर्स प्लेज हॉकी. इट मीन्स कि कुछ फुटबॉल के प्लेयर हॉकी खेलते हैं. ये हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट
हम बाकी दो ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम में आपको जब एक ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है या फिर 3 ऑप्शन रॉन्ग मिल जाते हैं तो आप अपने टाइम को सेव करते हुए उसको टिक करके आगे चलें। बट हम यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए सी और डी ऑप्शंस को भी देखेंगे। ऑल द फुटबॉल प्लेयर्स प्ले हॉकी। इट मीन्स फुटबॉल के जो सारे प्लेयर्स हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है ये वाले जो प्लेयर्स हैं फुटबॉल के वो हॉकी नहीं खेलते। सो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। ऑल हॉकी प्लेयर्स प्ले फुटबॉल। हॉकी के जो सारे प्लेयर्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। जो ये वाले हॉकी के प्लेयर्स हैं, ये वाले जो हॉकी के प्लेयर्स हैं ये फुटबॉल नहीं खेलते, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। सो बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फिगर गिवन P, Q, R and S. In this figure shown above, PQRS is a square. The shaded portion is formed by intersecting the sectors of the circle with radius equal to the side of the square and center at S and Q. It means अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, दिस इज P, S एंड R, और इस इतने पोर्शन को देखें तो ये हमारा क्या है, सर्कल का एक पार्ट है। इसी तरीके से जो P, Q एंड दिस वन इज R, ये भी हमारा क्या है, एक सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पॉइंट पिक्ड रैंडमली विद इन द स्क्वायर फॉल इन द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ओके, शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? एज वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट is equal to 1/4 of area of circle. And what is area of circle here? Pi r square. Okay, so quadrant का area 1/4 pi r square हो जाएगा। Then area of quadrant, ये वाला जो क्वाड्रेंट है हमारा P, R और S से हो रहा है, जो P, R, S प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट Q, P, R, ये वाला, ये Q, P, R, दोनों का क्वाड्रेंट्स का एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों के लिए रेडियस क्या है, R है। क्योंकि ये वाला अगर रेडियस R है और ये स्क्वायर है तो ये भी R होगा ना हमारा। ठीक है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 pi r स्क्वायर प्लस 1/4 pi r स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हम एक बार ये वाला एरिया ऐड कर रहे हैं, एक बार ये इस क्वाड्रेंट का एरिया ऐड कर रहे हैं, तो दोनों क्वाड्रेंट के एरिया में आपने ये बात नोट की होगी, ये वाला पोर्शन आपका एक बार इंक्लूड हुआ है, ये वाला पोर्शन भी एक बार इंक्लूड हुआ है, लेकिन जो ये शेडेड रीजन है ये 2 टाइम्स इंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से स्क्वायर का ये जो कंप्लीट एरिया हमने फाइंड किया है इसमें से अगर हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें, स्क्वायर का एरिया मीन्स एक बार इस रीजन का, एक बार इस शेडेड रीजन का और एक बार इसका, तो ये कंप्लीट स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। ये अगर हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारा शेडेड रीजन का एक बार का एरिया रह जाएगा। सो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, आर स्क्वायर ओनली, तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर से, क्योंकि आर स्क्वायर हमारा कंप्लीट जो एरिया है स्क्वायर का है। प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम
एरिया के टर्म्स में देखें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया हमारा क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ पाई minus 1, which is our C option. This is correct answer. Let us see our last question in this video. In an equilateral triangle PQR, एक equilateral triangle है हमारे पास, equilateral PQR, इक्विलेटरल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। साइड PQ इज डिवाइडेड इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स and side QR is divided into 6 equal parts. QR, this one, 6 equal parts, and side PR is divided into 8 equal parts. The length of each subdivided part is in centimeter is an integer. Length of PQ is 4 equal parts में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। It means 4 multiply length of that one part, okay। और इन्होंने बोला है कि वो एक नंबर एक इंटीजर होगा। It means हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, 4a टाइप होना चाहिए। ऐसे ही PR की जो लेंथ है वो 8b, क्योंकि इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका जो 1 पार्ट का जो लेंथ है वो भी एक इंटीजर होगा। जरूरी नहीं है कि सेम इंटीजर हो, तो इसको हम 8b लेट करेंगे और इसको 6c। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल था। इट मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स क्या है, आपकी इक्वल होनी चाहिए। It means 4a should equals to 8b should equals to 6c, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इनको कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर लें, या फिर हम एलसीएम फाइंड कर लें 4, 8 और 6 का, जो कि हमें इजीली मिल जाएगा। 24 एलसीएम आना चाहिए, आपका जो एलसीएम है वो आप फाइंड कर लीजिएगा। 4, 8 एंड 6 का 24 आना चाहिए। और आप ये नंबर भी देख सकते हैं, 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आपकी जो ए की वैल्यू है 6 आ जाएगी, और आपका 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। 24 6 से डिवाइड होगा तो सी की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको फाइंड करके बता दी है, बट इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQRS। अब हमें PQRS ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। √3/4, साइड हमने फाइंड आउट कर लिया कि 24 होनी चाहिए, ठीक है। तो 24 को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। Then 4 6 are 24, and after multiplying we will get 144√3. Got it? D is our correct answer.